Rahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. A very good morning to all of you. I welcome you all in my class. So, you have your English class, and your teacher name is definitely. I am there to teach you. So, as you all know that we are doing our exercise for the unit for the lesson number 1, the farewell sermon. And yesterday we did our task, or we just read about the basic points of about parts of speech. Okay, so we are moving ahead, and we are going to start our topic for today, that is the noun and kinds of noun. Right, although I do know that these are all the topic that seems to be very easy to you all, and might you get lose your interest as well, but it is very important to know, it is very significant to know about the all the basic concepts. Okay, because आपके MCQs में this could be the part, these be all the concept related to the initial thing, or will just go, you are going to get the different MCQs regarding that. Okay, so let's start today's lecture, that is noun and the kinds of noun. Okay, what is noun? We have been just going through or listening this or reading this definition from the very beginning. What is that? A noun is a word used as the name of a person, place or thing. Okay, so yesterday we talked about this thing. A noun is a name of a person, place or thing. The word thing is used to mean anything that we can think of, right? Look at the following sentence: Ashoka was a wise king. So all those things that are highlighted are written in red that are related to that particular topic. The noun Ashoka refers to a particular king, but the noun king might be applied to any other king as well as Ashoka. We call Ashoka a proper noun and king a common noun. So first of all, we have discussed what is a noun. Then we categorized a noun into proper noun and common noun. There is one example given there, that is of Ashoka. Ashoka was a wise king, right? Ashoka, that is referred to a particular king, that is a proper noun. On the other hand, king is a common noun, right? So in order to elaborate it further, we may say that that if we name any particular person, place or thing, that could be proper noun. जब हम किसी भी नाम को, एक particular person को एक नाम देते हैं, किसी place को एक नाम देते हैं, that could be proper noun. लेकिन जब हम किसी भी कॉमन बात करते हैं, ठीक है, किसी भी इंसान के बारे में बात करते हैं, देन इट कुड ऑफ द सेम काइंड, इट कुड बी अ कॉमन नाउन, राइट? तो कॉमन नाउन क्या है? इज अ नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. कॉमन हियर मीन शेयर्ड बाय ऑल, ठीक है. जिस तरीके से इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है, जैसे मैंने कह दिया अ पोइट. ओके, a poet, he was a poet. Okay, and the poet, he was a poet. Poet क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन हो गया. लेकिन जब मैंने कह दिया the poet name is गालिब, गालिब क्या है आपका? प्रॉपर नाउन हो गया. ओके, तो आपको अब समझ आ रही है कि मीन कॉमन नाउन क्या है? दैट एनीथिंग रिलेटेड दैट इज कॉमन टू ऑल, दैट इज कॉमन नाउन. इट कुड बी इन द थिंग्स, इट कुड बी द पर्सन, इट कुड बी द प्लेस, इट कुड बी द आइडिया. लेकिन जब आप उसको क्या करेंगे, जब उसको आप पर्टिकुलर करेंगे, जब आप उसको स्पेसिफिक करेंगे, देन इट वुड बी अ प्रॉपर नाउन, ठीक है. जैसे कंट्री, आई लव माई कंट्री. ओके, आई जस्ट विजिटेड दैट कंट्री. कोई भी कंट्री हो सकता है, लेकिन जब हम इसे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, प्रॉपरली से नेम देंगे, तो आपके पास वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, राइट? A proper noun are always written with a capital letter at the beginning. No two proper noun are sometimes used as a common noun as well. Proper noun क्या है? Okay, he was the Luqman. Luqman, that is the wisest man of his age. Kalidas is often called the Shakespeare, the great
ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप उसको जब हम स्पेसिफाई करेंगे, प्रॉपर नाउन में क्या है कि जब आप स्पेसिफाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, देन इट इज़ अ कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन। लेकिन जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं एक कॉमन सेंस के लिए, देन इट कुड बी अ कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन्स को ही हम आगे लेकर चलते हैं। तो कॉमन नाउन क्या है, ये हम इनसे कलेक्टिव नाउन भी फॉर्म करते हैं, सच एज, और उसके साथ क्या फॉर्म करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब आप पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। नाउन को आगे हमने कैटेगराइज किया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में हमने रखी एनीथिंग, एनी नेम, सॉरी एनी पर्सन, एनी वन, और उसको ही हमने क्या कर दिया, जब हमने इसे प्रॉपर किया, दैट इट इज़ anything could be that charioteer, okay, chariotry. Any name could be that अलामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, लेकिन उन्हें इसी तरीके से कॉमन नाउन के साथ हमें क्या फर्दर बताया जा रहा है कि कॉमन नाउन को आप क्या कर सकते हैं, दैट इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन फर्दर किस चीज़ में डिवाइड हो रहा है आपके पास, कलेक्टिव नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में क्या है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, एज crowd, mob, team, flock, herd, army, fleet, jury, family, nation, parliament, committee। ठीक है, आपके पास थोड़ा सा फिर वापस चाहती हूँ मैं आपको, वो प्रीवियस थोड़े से स्लाइड की तरफ हम देखते हैं कि कॉमन नाउन, उसमें क्या कह रहे हैं वो, कि कॉमन नाउन कुड बी दैट इज अ नेम गिवन to and every person or thing of the same class or kind। तो अगर आप इसको लेकर चलें, आप कलेक्टिव नाउन की तरफ लेकर चलें, तो ये डेफिनेशन दैट गोज इनटू दैट फिट इनटू दैट थिंग। तो आपके पास कलेक्टिव नाउन क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन टेकन टुगेदर। ठीक है, ये वो नाउन है जिसमें एक ही जैसी क्वालिटीज़ या एक ही जैसे मीन पर्टिकुलर नंबर ऑफ थिंग्स जो हैं उनकी कलेक्शन होती है, जिसमें आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। वो क्या है, कलेक्टिव नाउन में फ्लीट बोला है, आर्मी है, क्राउड है, जूरी है, हर्ड है। ओके, सो दीज आर आर कलेक्टिव नाउन। Right, collective noun, a fleet, a collection of ships or vessels, an army, a collection of soldiers, a crowd, a collection of people. So they have that is the common, they have the common you can say characteristic in them. The police dispersed the crowd, the French army was defeated at Waterloo, the jury found the prisoner guilty, a herd is cattle is passing। ठीक है, तो herd है of cattle that is possessing the same qualities, उनकी भी क्वालिटीज सेम है। अगर आपके पास क्राउड है तो उसकी भी क्वालिटी सेम है, सो दे आर कलेक्टिव बट दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट की नाउन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स टू। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, उसने कहा है यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर अपार्ट, क्वालिटी या स्टेट की के बारे में हमें बताता है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स टू। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में जिससे मीन, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एक किसी के बारे में कुछ भी बता दिया है, दैट इज़ इनफ, हमने उसकी क्वालिटी बता दी है, लेकिन उससे फर्दर उसको एलैबोरेट करने के लिए दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करेगा, उसको फर्दर डिवाइड करेगा। तो इट इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी कंडीशन, ये एक क्वालिटी कंडीशन का नाम है, दैट कुडंट बी सीन। ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते। राइट, जिस तरीके से क्वालिटी में क्या चीज़ आ जाती है, गुडनेस आ जाती है, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, और एक्शन में क्या आ सकता है, लाफ्टर, थेफ्ट, स्टेट में चाइल्डहुड, बॉयहुड, शूज, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नेम। तो एब्स्ट्रैक्ट नेम में उसने क्या कहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नेम क्या है, दैट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ठीक है, तो आपने तीन चीज़ों को जहन में रखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, क्वालिटी से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आई अप्रिशिएटेड हिज ऑनेस्टी,
ओके, एक्शन क्या है, द लाफ्टर, ही रोड इन लाफ्टर, ओके, एक्शन है उसका। स्टेट क्या है, ही इज इन हिज चाइल्डहुड, ओके, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी। तो ये सब चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हैं कि दैट दे जस्ट टेल अस अबाउट द क्वालिटी कंडीशन दैट कुडंट बी सीन, जिसके बारे में हम क्या नहीं कर सकते, जिनको हम चीज़ों को देख नहीं सकते, सच एज रिलीजन है, आपके आइडियाज़ हैं, आपके बिलीव्स हैं, आपकी क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज़ में क्या है, ट्रूथ है, ट्रू होना है, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो आपके सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आएंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करने का फार्मूला क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव एज काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी 3 तरीके से आप हम क्या करते हैं, उसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। नंबर 1 एडजेक्टिव के थ्रू फॉर्म कर सकते हैं, नंबर 2 वर्ब के थ्रू, और कॉमन नाउन के थ्रू फॉर्म कर सकते हैं हम। एडजेक्टिव से कैसे फॉर्म करते हैं, काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट आर फाउंड दिस, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो किसी की भी क्वालिटी होती है, हम उसके थ्रू ही उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काइंडनेस को नहीं दे सकते। वर्ब, ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, और कॉमन नाउन से चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, स्लेवरी फ्रॉम स्लेव, ठीक है। तो आप अगर पिछली स्लाइड में जाओ तो आपकी जो 3 चीज़ें हैं, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। क्वालिटी आपके एडजेक्टिव से, एक्शन आपके वर्ब से, स्टेट आपकी किससे फॉर्म हो रही है, आपके कॉमन नाउन से, राइट। आर यू गेटिंग, आप समझ रहे हो, ठीक है। साथ साथ बेटा पॉइंट, इफ़ इट इज़ योर नोट डाउन द पॉइंट, जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उन चीज़ों को साथ साथ लिखते भी जाएं, ठीक है। तो हमने कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरीके से फॉर्म किया है, हमने फॉर्म किया है एडजेक्टिव से, ठीक है, क्वालिटी से, हमने वर्ब से, एक्शन से, कॉमन नाउन से भी हमने क्या किया है, हमने कॉमन नाउन से, स्टेट से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म किया है, ओके। So if you have your books with you, you may go to page number 12, exercise number 2. Point out the noun in the following sentences and say whether they are common, proper, collective or abstract. Okay, so we have discuss all these points, that is collect common, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉमन को हमने डिस्कस किया, प्रॉपर को, कलेक्टिव को और एब्स्ट्रैक्ट को डिस्कस किया। द एक्सरसाइज हैज़ बीन सॉल्व हियर, यहाँ पे सॉल्व की हुई है ऑल दोज वर्ड्स दैट आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ नाउन और द काइंड ऑफ नाउन, उनको रेड किया गया है एंड बिसाइड्स दैट उसको क्या किया गया है, उसको आंसर भी दिया गया है। आई थिंक सो दैट देयर इज़ नो नीड टू से अबाउट दैट थिंग, लेकिन फिर भी द क्राउड वॉज वेरी बिग। क्राउड यहाँ क्या है, कलेक्टिव है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द मॉब ऑफ पीपल, जो लोग इकट्ठे हुए हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, एब्स्ट्रैक्ट है, हम नहीं देख सकते, बट दैट इज़ अ क्वालिटी, वी ऑल लव ऑनेस्टी। एब्स्ट्रैक्ट है, क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल, क्लास कलेक्टिव है, पीपल्स क्या है, कॉमन है। अगर पीपल को हम पर्टिकुलर नेम देंगे वो आपका क्या होगा, प्रॉपर होगा। द एलिफेंट कॉमन है, हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है उसका, एब्स्ट्रैक्ट है। एलिफेंट अगर होगा, सूजी दैट हैज़ बीन एक्सपायर्ड नो, जो जू में थी, लाहौर जू में थी, सूजी हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, देन इट कुड बी प्रॉपर। सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम एब्स्ट्रैक्ट, मतलब वो एक ऐसी चीज़ दैट कुडंट बी सीन, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डीनेस, और both the things are abstract, ठीक है। इसी तरह से द एक्सरसाइज goes on and we have solved all this exercise, okay। Exercise number 2 that has been done for you. Now we are coming towards the next step, that is the noun and the kinds of noun. अपने हमने चीज़ों को कैटेगराइज करना है। हमने देख लिया कि नाउन के अंडर नाउन की डिफरेंट कैटेगरीज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब हमने चीज़ों को कैटेगराइज करना है। वी जस्ट से we just name the thing according to the quality or the specific characteristic they do possess, ठीक है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, उनको नेम करना है। इस नेम को इनको नेम करने के लिए we have to make the
वी हैव टू मेक द थिंग्स इनटू मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, ठीक है। हम जेंडर वाइज उसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। इट इज ऑल फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ नाउन, ये नाउन ही है। ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ और ऑफन personified that is spoken of if they were living being, we then regard them as a male or female, ठीक है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम शेयर करवाते हैं क्वालिटीज़ एज दे आर, हम उनको ऐसे बात करते हैं एज दे आर वर लिविंग बींग, सच एज बाज़ात आप अपनी पोइट्री में देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। बाज़ात हम अपने आर्टिकल्स में और प्रोज में यूज़ करते हैं, सच है कि जिस तरीके से दे डिस्पोजेस द क्वालिटी ऑफ एनी ह्यूमन बींग। अभी मैं एग्जाम्पल उसकी पढ़ती हूँ। द मैस्कुलिन जेंडर, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस एज। तो मैस्कुलिन जेंडर जो है जहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादातर किससे रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड विद स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। आई डू रिपीट द पॉइंट अगेन। ऑब्जेक्ट्स नाउन को हम फर्दर किस तरीके से किस में कैटेगराइज करते हैं बेटा, हम नाउन के थ्रू ही फॉर्म कर रहे हैं अपने मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। उसमें हमने कैटेगराइज किसके थ्रू किया, हमने कैटेगराइज किया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, उनकी क्वालिटी के थ्रू, ठीक है। तो मैस्कुलिन के अंदर हम क्या चीज़ें लेकर आते हैं, हम वो ऑब्जेक्ट्स दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, लेकिन हम उनको समटाइम पोजेस करवाते हैं मुख्तलिफ क्वालिटीज़। तो वो किसकी वजह से है, वो आता है जब हम कैटेगराइज करते हैं ना उनको, बिकॉज ऑफ डिफरेंट जेंडर विद एनी जेंडर, ठीक है। तो उसमें क्या है, द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, ठीक है। द सन शेड्स हिज बीम, हिज, इसको अंडरलाइन करो, द सन, ठीक है। हैव यू गॉट योर पेंसिल, आपके पास अगर पेज है, इफ़ यू हैव बुक तो बेटा प्लीज़ पेज नंबर 12 ओपन करें आप योर टेक्स्ट बुक, तो उसमें देखें द सन शेड्स हिज बीम ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, ठीक है। तो हिज इज सन द लिविंग बींग, नो, सन तो लिविंग बींग नहीं है, लेकिन सन को हमने क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है। एंड बिकॉज इट पोजेस द क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ एंड वायलेंस एंड एंगर, तो उसको हमने क्या किया है, हमने उसको हिस के साथ क्या किया है, कैटेगराइज किया है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस थिंग, आपको ये पढ़ाने का पर्पस क्या है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू पीपल व्हेन यू आर डूइंग योर एरर एनालिसिस, तो आपको इसमें हेल्प करेंगी। तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। यू मस्ट लर्न दिस वर्ड्स, सन, समर, विंटर, टाइम एंड डेथ। द डेथ was dancing and played on the flute, okay, and his wrath was uncontrollable, ठीक है। his, तो दोबारा से जैसे सन को हमने एक मैस्कुलिन जेंडर के साथ किया है, इसी तरह से डेथ को भी। फेमिनिन जेंडर में क्या है, द फेमिनिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस एज, ठीक है। तो सन को जहाँ हम हिज, ओके, आर यू गेटिंग अगेन आई एम रिपीटिंग, हिज मैस्कुलिन जेंडर के साथ करते हैं। ऑन कंट्रेरी हम मून को किसके साथ करते हैं, ब्यूटी के साथ रिलेटेड है ये, रैथ के साथ रिलेटेड नहीं है, एंगर के साथ रिलेटेड नहीं है। मून को हम करते हैं ये फेमिनिन क्वालिटीज़ के साथ, ठीक है। द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, सो ऑल द गुड थिंग्स दैट आर रिलेटेड विद द फेमिनिन जेंडर, वो सारी जो चीज़ें दैट आर रिलेटेड विद द ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस दैट आर रिलेटेड विद द फेमिनिन जेंडर, जब भी हम इनकी बात करेंगे वी डू पुट हर देयर, ठीक है। हम उनको एक फीमेल के तौर पे लेंगे। द मून हैज़ हिटन हर फेस बिहाइंड अ फेस, स्प्रिंग हैज़ स्प्रेड हर mantle of green over the earth, peace hath her victories no less renowned than war, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो इससे रिलेटेड है, तो आपकी किस में हेल्प कर रही हैं, whenever we have to do the error analysis, whenever we have to find the mistakes, तो आपको प्रॉपर जो वर्ड हैं, प्रॉपर जो प्रोनाउंस हमने यूज़ करने हैं, पर्सन्स यूज़ करने हैं, उसमें आपको हेल्प करेगी। And the use is most common in poetry, but certain nouns are personified in prose too. A ship is always spoken of as a she, as ship lost all her boats in the storm. ठीक है, तो आपने इन वर्ड्स को आपने जहन में रखना है कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जो पर्टिकुलर हैं टूवर्ड्स द फेमिनिन, ठीक है,
और मैस्कुलन, ठीक है। हम दो जिस तरीके से हम उर्दू में आई एम नॉट रिमाइंडिंग द प्रॉपर वर्ड, दैट इज जिस तरीके से हम उर्दू में जेंडर को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे भी डिस्क्राइब करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे। आपने इन वर्ड्स की लिस्ट बना लेनी है, इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से याद करना है कि ये कौन से वर्ड्स हैं जो मैस्कुलिन जेंडर से रिलेटेड हैं, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो फेमिनिन जेंडर से रिलेटेड हैं। Okay, learn the ways of forming the feminine and masculine noun from textbook page number 13 to 14 में उन्होंने डिफरेंट वे बनाए हुए हैं कि जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। we may learn them how do we add syllable, किसके साथ हम ESS का एडिशन करेंगे, कहाँ पे हम सिर्फ TCH का एडिशन करेंगे, IN का करेंगे, ठीक है, तो वो उन्होंने डिफरेंट रूल बताए हुए हैं। अब नाउन आगे कैटेगराइज हम करते हैं, नाउन किसकी फॉर्म में भी आ सकता है, नाउन किसके भी फॉर्म में आ सकते हैं। नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर, ठीक है। ट्री ट्रीज, बॉक्स बॉक्सेस, ऑक्स ऑक्सन, मैन मैन मैन, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डोनेट वन थिंग, द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डोनेट मोर देन वन थिंग। ट्री ट्रीज, बॉक्स बॉक्सेस, हमने क्या किया, हमने प्लूरल भी फाइंड किए, ऑक्स ऑक्सन, मैन मैन। हमने इन्हीं नाउन के थ्रू हमने क्या किया, इन्हीं सिंगुलर नाउन के थ्रू हमने प्लूरल भी फाइंड किए हैं। तो द नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन टू वन थिंग इज सेड टू बी द सिंगुलर नंबर, ए बॉय, अ गर्ल, अ काउ, अ बर्ड, अ ट्री, बुक, पेन। और जो मोर देन 2 नंबर करते हैं, there are 2 numbers in English, that is singular and plural. Learn how plural are formed from textbook 15 to 20. उन्होंने different क्या बनाए हुए हैं बेटा, they have given us the different rules. You must go through those rules. Page number 15 and 20. I will share the pages of the book as well, ठीक है। उसमें if you do not have your book, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप मुख्तलिफ सिंगुलर और मुख्तलिफ प्लूरल नाउन कैसे आप फॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज इन इंग्लिश देयर इज़ अ रूल, आप करते हैं सिलेबल को तोड़ के, उसकी वाइज के अकॉर्डिंग जो है सिलेबल कितने हैं उसको काउंट करके आप फिर प्लूरल फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो द एक्सरसाइज दैट इज रिलेटेड फ्रॉम पेज नंबर 15 to 20. I do know that you would have some points regarding that. I am going to after you have completed this video, ठीक है, तो meanwhile I will be asking you question. It may take 25 minutes to listen the whole lecture, और उसके बाद हम दोबारा से अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। What you have to do between पेज नंबर 15 to 20 में आप लोगों ने देखना है कि हम किस तरीके से क्या करते हैं, अपने प्लूरल फॉर्म करते हैं। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस लेसन, विद दिस लेक्चर, एज आई विल बी शेयरिंग वर्कशीट, ठीक है। तो प्लीज़ लिसन द लेक्चर केयरफुली एंड आई विल सी यू विद एन अदर लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह ताला। आई होप सो कि देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम एज इट वाज वेरी इजी, बट इट इज़ रिप्लीटेड विद मैनी इन्फो एंड देयर आर मैनी थिंग्स टू रिकॉल, ठीक है। सो टेक गुड केयर ऑफ यू इंशाल्लाह ताला। इफ़ you have any problem, please let me know. Allah Hafiz.